اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز محترم، رمضان المبارک عن قریب ہے اور اس کی تیاریاں بھی چل رہی ہوں گی۔ تیاریوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کا انتظام اسٹاک لگا رہے ہوں اور افطار کا اور سحری کا، یہ نہیں، بلکہ ہمیں کس طرح سے روزے رکھنے ہیں، کتنا وقت اپنی تلاوت میں، کتنا وقت اپنی نفلوں میں، اور کتنا وقت کب اور کہاں کس طرح سے، مطلب یہ تیاریاں، اور یہ تیاریاں سب سے پہلے ذہن میں چلتی ہیں، دماغ میں چلتی ہیں۔ لیکن ہر ایک انسان رمضان المبارک میں کیا کریں، کیسے کریں، کس کو کیسے اچھے سے ان کو بنائیں، یہ سب اپنے اپنے مزاج سے، اپنے دماغ سے، اپنے انداز سے بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ جتنے طریقے بتائے جاتے ہیں وہ کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو سب کے لیے یکساں اور برابر ہو۔ جو انسان پڑھا لکھا یہ بات کہتا ہے کہ میں بتاؤں کیسے رمضان المبارک کو گزارنا چاہیے، تو وہ اپنے پڑھے لکھے حساب سے بات کرے گا کہ دیکھو آپ نے اٹھیے، یہ کریے، تہجد پڑھیے اور نفلیں پڑھیے اور قرآن مجید پڑھیے اور ترجمہ والا قرآن مجید پڑھیے اور یہ کریے اور وہ کریے، اس طرح سے یہ بتائے گا۔ لیکن وہ جو کام وہ خود کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے لوگ یہی کام کر رہے ہیں اور اس کے پاس اتنا وقت ہوگا اور یہ سب کچھ کر سکیں گے، لیکن یہ ایسا کہاں ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان اپنا کام الگ الگ کر رہا ہوتا ہے، اور سب کا ٹائم ٹیبل، سب کا وقت، سب کی صلاحیت، سب کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے۔ وہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، دیکھو، ہے نا۔ ہاں، وہ الگ چیز ہے، جیسے مان لیا عمرہ کرنے گئے تو اس میں جو عمرہ کر آئے ہیں وہ ان کو اچھے سے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا کرنا ہے، اتنے وقت اٹھنا، اتنا یہ کرنا، پھر طواف کر لینا، پھر مسجد نبوی میں اتنے ٹائم جانا، یہ کرنا، وہ کرنا، زیارت کرنا، اور یہ ساری چیزیں مان لیا بتا دیتے ہیں، اور وہ ہو جاتی ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا نہ پڑھے لکھے ہوں، وہ سب کے ساتھ میں رہتے ہیں نا، تو سارا کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حج میں بھی یہی معاملہ ہے، یہ اس کو بھی چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، سب ایک ہی کام وہاں پر سب کو کرنا پڑتا ہے، بہرحال وہ تو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ رمضان المبارک کے بارے میں ایک طریقہ سب کو بتا دیا جائے، وہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بیچارہ مزدور آدمی ہے، وہ اپنے اس کے حساب سے، کوئی مان لیا رکشہ چلاتا ہے، وہ اپنے حساب سے کام کرتا ہے، کوئی دکاندار ہے وہ اپنے حساب سے کام کرتا ہے، کوئی سروس مین ہے وہ اپنے حساب سے رمضان المبارک کو کرتا ہے، اس کے آنے کا ٹائم، اس کے جانے کا ٹائم کیا ہے وہ خود سمجھتا، ہم تو سمجھ نہیں سکتے۔ بہرحال ہم جہاں پہ ہیں وہی سمجھتے ہیں، اور وہی نگاہ سے سب کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی طریقہ ہم لوگ ایسا بتا دیا کرتے ہیں۔ لیکن محترم، یہ خود اپنے کو سوچنا ہوگا، اپنے کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنا رمضان المبارک میں جو وقت ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی قسمت سے عطا کیا ہے، جی ہاں، وہ اس کو ہم کس طرح کتنا اس میں لگا سکتے ہیں۔ جی ہاں، کتنا کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو مان لیا 24 گھنٹے اس میں رہتا ہے، جب ارے بھائی مان لیا روزے سے ہے تو مان لیا تو اسی میں تو ہے نا، اور اس کے علاوہ رات میں جو نمازیں اور تراویح وغیرہ پڑھتا وہ بھی اسی میں تو ہے ہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم اپنا کتنا وقت اس میں لگا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، تو وہ خود اپنا خود فیصلہ کر لے۔ اگر مان لیا پڑھا لکھا ہے
मान ली वो अपने हिसाब से ऐसे बना ले कि हमको ये इतना पढ़ना है, इतना ये करना, उतना वो करना। और इसी रमज़ान मुबारक में हमें तर्जुमा कुरान मान ली किसी का भी इससे नहीं कोई लेना देना। हाँ, हम कम से कम इसको तो मुकम्मल कर ही लेंगे। हाँ, नहीं अभी तक ये पढ़ सके, थोड़ा सा पढ़ सके ये करते, लेकिन इसमें इंशाअल्लाह पूरा मुकम्मल कर लेंगे। चाहे वो मान लिया सिर्फ मान लिया तफसीर ना पढ़े, तर्जुमा ही पढ़े, या इसके अलावा सादा कुरान मजीद हम कितना पढ़े। हाँ, तो बात यहाँ पर यह चल रही है कि हर एक मुसलमान अपने अपने हिसाब से इसका खुद फैसला कर ले। और ये ना समझे कि हम जैसे मान लिया तरावी पढ़ने के बाद होटलों में बैठ गए, वहाँ गपशप हो रहा, खाने पीने का सब कुछ चल रहा है, और रात 11-12 बज गए वहीं पर बैठे हुए हैं, फिर चले आए। ये वक्त रमज़ान मुबारक में नहीं लगा। सही बात ये है, ये वक्त उसमें अल्लाह के रास्ते में नहीं लगा। सीधी सादी बात ये समझो। वो तो अपनी मटरगश्ती में लग गया, अपने खाने पीने में लग गया, अपने सैर तफरीह में लग गया, ये उल्टी सीधी गप्पों में चला गया, ये तो बिल्कुल बेकार चला गया। हाँ, ये मान लिया, ये सोचना चाहिए कि हमारा कितने परसेंट इसमें वक्त लग रहा, और वही वक्त उसको मान लिया समझा जाएगा जो मान लिया ख़ास करके उसी के काम में लगाया जाएगा। चाहे मान लिया वो नफलें पढ़ी जाए, चाहे वो मान लिया बैठ करके सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई तस्बीह की जाए, या कुछ भी किया जाए। तो अज़ीज़ मोहतरम, ये हम लोगों को खुद अपना मैंने वो करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए, और जायज़ा भी लेना चाहिए हमारा कितने परसेंट टाइम जो है रमज़ान मुबारक में लग रहा है। यानी 50%, यानी 50%, या 75%, या 90%, या पूरा 100 का 100%। हाँ, आप सोच रहे होंगे 100 का 100% कैसे लग सकता है किसी का? इंसान तो सोता भी है, पैखाना पेशाब भी करता है। अरे जी हाँ, वो भी अगर अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक किया जाएगा, सोया भी जाएगा उसी के मुताबिक, तो वो भी माली इबादत में शुमार होगा, और रमज़ान मुबारक का महीना है तो उसी में शुमार होगा। उसमें भी आपको नेकियां उसी अंदाज से मिलेंगी जैसे रमज़ान मुबारक में मिलते हैं। बहरहाल ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को खुद इस पे गौर फिक्र करना चाहिए। और एक बात ये है कि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मान लिया रमज़ान मुबारक में जितना खा लिया जाए, जितना पी लिया जाए उतना सुंदर, और मान लिया बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्यों नहीं भाई, अल्लाह ताला ने जब खाने को दिया है आप भी खाइए, दूसरों को खिलाइए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ना हो आप अपनी घर की बच्चियों को आप अपने घर में उसी काम में लगा दें। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद में बस अफ्तारी की तैयारी होने लगी, तमाम किस्म के खाने पकाने, पकौड़े कचौड़ी ये वो दुनिया की, और इसके अलावा ऊपर से मान लिया आर्डर कि देखो आज ये भी कर लेना, आज वो भी कर लेना, देखो ये तमाम चीज़ें। ऐसे नहीं भाई, उनका भी हक़ है, उनका ही वो बनता है, वो भी बेचारी नमाज़ें और नफलें, और उनको भी आराम करने का दिल चाहता है। हम तो यहाँ बैठे ऑर्डर दे दिया। अरे भाई, उनको भी खड़ा होना पड़ता है जब वो पकाती हैं, उनका भी ध्यान रखें। वो भी अल्लाह की बंदी हैं, वो उनके ज़िम्मे भी यही चीज़ है जो आप और हम लोगों के लिए है कि मतलब कितना वक्त उसमें लगा सकते हैं। तो अज़ीज़ मोहतरम, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप इसी में लगाने की कोशिश करें। और ये जो तमाम टाइम हमारा इसी में खाने पकाने में चला जाता है। यहाँ पर ये ना समझें कि खाने और पकाने और तमाम तरह के खाने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है। नहीं भाई, रोका नहीं जा रहा है। हर काम जो है औसत और मालिया मीडियम का अच्छा होता है, और जो काम हद से ज़्यादा हो जाता है, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, बहरहाल वो भी मालिया ख़राब हो, मालिया गलत हो जाता है, और उसमें भी दिक्कतें और तकलीफ़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपको मालिया बता दिया गया कि मालिया आप जो है वर्जिश किया करें। जी हाँ,
कुछ खड़े होने की, कुछ कुछ मान लो उछलने की, कूदने की, कुछ झुकने की, कुछ मान लिया टेढ़े मेढ़े होने की, कुछ टांग पे सीधी करने की, या कोई तमाम किस्म की बता दी गई। मान लिया, फ़र्ज़ कीजिए, और कहा गया कि आप अपने जब जिस्म के आज़ा को मान लिया सही रखेंगे, उनका टाइटपन ये उसका ख़त्म हो जाएगा, उनका खून का दौरान सही होगा, तो आपको जितनी तकलीफ़ें आपके जिस्म में हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, और आपके ऊपर से लेकर अंदर तक के जितने आज़ा हैं वो सब मजबूत हो जाएंगे। तो बहरहाल आपको किसी ने बता दिया, और आपको उसने बता दिया ये सारे के सारे काम आपको 1-1 मिनट करना है। कितना बताया? 1-1 मिनट करना है। और हमने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए। मान लिया किसी ने हमसे कह दिया हकीम जी आप ऐसा करिए, आपके टांगों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, आपको चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, आपका पेट भी निकल रहा है, ये भी है वो भी है, आपकी टेंशन भी नहीं बनी रहती है, और आपकी सेहत भी डाउन होती चली जा रही है, आप ऐसा करिए, ये वर्जिश आप करिए। और सबको बता दिया कि मान लिया 1-1 मिनट आपको करना है। सिर्फ कितना? 1-1 मिनट बता दिया। भाई हर दवा की खुराक होती है, हर चीज़ की एक तादाद होती है, चाहे वो खाने पीने का नमक हो या शक्कर हो, बहरहाल हर चीज़ की तादाद होती है। अच्छा, उसने बता दिया 1-1 मिनट आपको ये काम करना है, और आप मान लिया इसको मान लिया मुसलसल करते रहिए। अब हमने अपने दिमाग से काम लेना शुरू कर दिया। बहुत काबिल बनते हैं ना। तो बहरहाल उसने बताया 1-1 मिनट, हम 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट करने लगे। अब जब इतना करने लगे तो तादाद तो ज़्यादा हो ही गई। हमारा जिस्म अभी वो तो चीज़ कबूल कर नहीं सकता इतना ज़्यादा, तो होगा क्या, बजाय आराम के तकलीफ हो जाएगी। जहाँ दर्द नहीं होता था वहाँ पर भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। कहीं मान लिया अकड़ जाएगा। अगर कमर में दर्द नहीं है तो कमर में दर्द पैदा हो जाएगी, और सब छोड़िए। कहने का मतलब हम तो फ़ायदे के लिए ये मान लिया सोचा था, ये सोचा था कि हम और ज़्यादा कर लें। उसने बताया 1 मिनट, हम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना कर पाएंगे उतना कर। एक दिन कस के कर लिया और दूसरे दिन उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, अरे पूरा जिस्म बेकार हो गया। मोहतरम ये है। तो आप रमज़ानुल मुबारक में जो भी काम करें, जी हाँ, जो भी इसे फार्मूला बनाएं, जो भी अपनी तरतीब बनाएं, जो कुछ बनाएं वो अपने हिसाब से बनाएं। इतनी ज़्यादा ना हो कि मान लिया घर के काम भी मुतासिर हो जाएं, और मान लिया अपने जिस्म को भी तकलीफ़ हो जाए, और मान लिया आप बीमार भी पड़ जाएं। देखो, अगर कोई किसी चीज़ के ऊपर तादाद से ज़्यादा लोड लाद दिया जाता है तो वो बेचारा बेबस हो जाता है, आसन छोड़ देता है और हाथ जोड़ देता है। तो ये ना करें कि कहीं एकदम से इतनी ना करने लगे जैसे हमने अभी आपको मिसाल दी, तो बजाय आराम की आपको तकलीफ़ होने लगे। तो इसलिए वक्त से बस आप ये करें, तरावी के बाद वक्त पे जैसे तरावी ख़त्म हो सीधे अपने बिस्तर पे चले जाएं। सुबह सहरी से पहले आप उठ जाएं। उतने में जो आपको वक्त मिले आप तहज्जुद और नफिलें पढ़ लें, और इस तरह से तमाम लग़वियात से ये बात लें। और चलते चलते एक बात और बता दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से रोज़ा रखने का, रोज़े में रहने का हुक्म दिया है, बताया है, समझाया है, वो सब के लिए बराबर और यकसां होती है। उनका बताया हुआ तरीक़ा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, कुछ भी कैसा भी हो, सबके लिए एक और बराबर होता है। कि मान लिया रमज़ानुल मुबारक को हमें तो उन्हीं का तरीक़ा अख्तियार करके हम अपने रमज़ानुल मुबारक को कामयाब बना सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें कहने से ज़्यादा अमल के तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।